हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत ख़त्म नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और खुदा की सारी मोहब्बत के लिए। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया और आज सुबह का दिन हमें दिया। खुदा ने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी और मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़तमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके जिंदा और पाक और मुक़द्दस कलाम से हम सीखेंगे। रसूलों के ईमाल उसका दूसरा बाप है, उसकी 40 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। और उसने बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें तनकीद की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जितने लोगों ने कलाम को कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाकर और ताकत रखने से और रोटी तोड़ने में और दुआ में मशगूल रहे और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान और रसूलों के जरिए तरफ से होते थे और जो ईमान लाए थे और वो सब के एक जगह रहे और सब उसके वसीला से शरीयत में थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात है। अपने आप को हमने क्या करना है, टेढ़ी कौम से बचाना है। और टेढ़ी कौम कौन सी है? किसी कौम का जिक्र नहीं किया गया। मेरे अज़ीज़ों, मैं किसी कौम को टेढ़ी कह दूं, लेकिन खुदा के कलाम ने हमें याद दिलाया। पौलुस रसूल फरमाता है कि टेढ़ी कौम से अपने आप को बचाओ और दुआ में ठहर जाओ। आज हमने अपने आप पर गौर करनी है, क्या हम उस टेढ़ी कौम से शामिल तो नहीं? मेरे अज़ीज़ों, टेढ़ी कौम वो है जो खुदा की कलाम को कबूल नहीं करती, जो खुदा की बातों को रद्द करती है। मत सोचें कि मैं दूसरे किसी और को कहूँ। खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है, टेढ़ी कौम वो है जो अपने बड़ों का, अपने कलाम का, अपने खुदा का, अपने अंबिया का, नबी का और रसूल का हुक्म नहीं मानती। वो टेढ़ी कौम है। उस कौम से हमें बचने की ज़रूरत है।
ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو کلام مقدس میں کہ خدا کی کلام کو جتنے لوگوں نے قبول کر لیا، جتنے لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا، خدا نے ان کو حق بخش دیا۔ اور رہی بات ان لوگوں نے خدا کی کلام کو قبول کیا تو انہوں نے بپتسمہ لیا، انہوں نے بپتسمہ لیا اور بپتسمہ لے کر نشان ہو دیکھتے اور عجیب کام موضع ہوتے دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ لیکن ہمارے درمیان موضع بھی ہوتے ہیں، کلامی خدا کام بھی کرتا ہے اور خدا کا روح بھی کام کرتا ہے، پھر ہم ایمان سے کمزور ہو جاتے ہیں، گناہ کے لیے، برائی کے لیے، برے منصوبوں کے لیے، کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ توبہ کرنے سے، نجات پانے سے زندگی بحال ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم ابلیس کے کاموں پر غالب آئیں۔ جب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم گناہ پر غالب آنے توجہ، خیال، غور، فکر رکھتے ہیں۔ تو جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم زندگی کو بدل نہیں لیتے، جب تک خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ہم نے کیسا خدا کو قبول کیا ہے؟ میرے عزیزوں، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اور ٹیڑھی قوم جو ہے، میں اس بات کو وضاحت سے نہیں کہتا، کلامی خدا ٹیڑھی قوم کے بارے میں وہ لوگ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے، وہ لوگ ابلیس کے فرزند ہیں، ابلیس کو اپنی زندگی کے اندر موقع دیتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ابلیس کے کاموں پر غالب آئیں، ابلیس کی سوچوں پر غالب آئیں۔ میں آج ایک حوالہ دیکھ رہا تھا تو اس میں کہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ گناہ میں گریں اور گناہ غالب آئے، اور کل میں اسی موضوع پہ کلام خدا کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آج ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، آج ہم نے خدا کے کلام کو قبول کرنا ہے، آج ہم نے اپنے خدا کے حضور جھکنا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو دعا میں ٹھہرنا ہے، آج ہم نے اپنے خدا سے بات چیت کرنی ہے۔ جب توبہ کریں گے، جب خدا کے کلام کو قبول کریں گے، جب خدا کے کلام کی بات کو سن لیں گے، جب خدا کے ساتھ وعدہ کریں گے، جب خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں گے، جب بپتسمہ لے کر یسوع کو کہیں گے کہ یسوع میں نے نادانی میں اور گناہ کر لیا اور خداوند تو مجھے معاف کر دے، تو یقیناً ہمیں معافی مل جائے گی۔ میرے عزیزو، آج ہم پھر ان لوگوں کے لیے پھر آتے ہیں جن لوگوں نے گناہ توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف لوٹ گئے، پھر گناہ میں گر گئے ہیں۔ خدا ان کی زندگیوں کو بحال کرنے کے لیے تیار ہے، موجود ہے۔ خدا ان کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا یہی چاہتا ہے کہ توبہ تک
नौबत पहुंच जाए वो खुदा के कलाम को कबूल कर ले। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा उनकी ताबा करें ताकि बपतिस्मा लें, निजात पाएं, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तो जब तक हम उसी शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते तो हमारे दुख, हमारी मुसीबत, हमारे बुरे मंसूबे बढ़ते जाते हैं और हम खुदावंद से दूर होते हैं। खुदावंद को कबूल करें, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ो, बनिनो इंसान गिर जाता है और खुदावंद यीशु मसीह उसे उठाता है। इब्लीस गिराता है, खुदा उसे उठाता है। तो आए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। जितने लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, उनने बपतिस्मा लिया, तौबा की और दुआ में ठहर गए ताकि रूह कुदस इनाम में पाएं। हालेलुया। रूह कुदस क्या करना है? इनाम में पानी है। रूह कुदस कब मिलती है? जब अपने आप को खुदावंद के ताबियात कर देते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, फाका जलाल बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अज़ीज़-ओ-क़रीब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे और खौफ से बचा और अपने जलाल के लिए बीदार कर बरकत दे। कुव्वत से मामूर कर। यीशु नासरी, आज का तेरे हजूर जितना बाखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना। खुदावंद, जितने लोगों ने तेरे कलाम को कबूल नहीं किया, उनकी जिंदगी को बदल, इरादों को बदल और मुझे भी खुदावंद तो अकल दिलाई और अपना फाइम दे ताकि मैं अपनी जिंदगी के अंदर तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा हकीकी तौर पे कबूल कर सकूं। ऐसा न हो पाक खुदावंद, जैसे कोई शख्स शीशा को देखता है, आईना को देखता है, अपनी सूरत देखकर तो फिर वो भूल जाता है। खुदावंद, तू ऐसा मुझे करना सिखा ताकि तेरा डर, तेरा खौफ हमेशा मेरी जिंदगी के अंदर मौजूद रहे। खुदावंद, जो तेरे कलाम को सुने वो भी इसी तरह तुझ में मसरूफ हो जाएं, दुआ में ठहर जाएं और पाक रूह को रिसीव करें और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे होकर खुदावंद आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे गार गिराना बीवी बच्चों के साथ रहना, बाप आसमानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ले के साथ रहना, इस आबादी इस शहर के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों को दूर कर। आज का कलाम सुनने वालों को बरकत देना। आज के कलाम के वसीला उन टेढ़े लोगों को या टेढ़ी कौम को जो तेरे कलाम पर गौर तवज्जो ख्याल गौर फिक्र नहीं करते,
उनकी जिंदगियों को बदल देना, और खुदा उनको अपनी जलाल के लिए बेदार करना। बाप आसमानी, मैं तेरे हजूर खाकसार होकर झुक कर मिन्नत करता हूँ, मेरे गुनाहों को भी माफ कर, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। बाप आसमानी, मैं गिरता हूँ, तू ही मुझे उठाने वाला है। मैं अपनी गुनाह का इकरार करता तेरे हजूर रखता हूँ और अपने आप को तेरे ताबिया करना चाहता हूँ, ताकि मैं तेरा बंदा, तेरा खादिम, तेरा बेटा, तेरा इल्ची होते हुए तेरे हजूर झुकूं, ताकि बहुत सारी जिंदगियां जीत कर तेरे गला में जमा कर सकूं। बाप आसमानी, मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे किया। बाप, मेरा रोना, चुरलाना, गुरलाप करना तेरे हजूर है, क्योंकि बाप तो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। बाप आसमानी, मैं तमाम बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ, उनकी बीमारियों को तेरे नाम के वसीला जानता हूँ। गंदी तासीरें, बीमारियाँ, अंदरूनी बीमारियाँ, गंदी तासीरें, शैतान की कुव्वतें, लानती वबा, यीशु तेरे नाम के वसीला जाए। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उन्हें तो जवाब नहीं देता, बल्कि तो उन्हें शिफा देता है। बाप आसमानी, उन लोगों को शिफा, रहाई, निजात बख्श दे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की मानो ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। उन बेटियों को मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद से मीरास दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तुझे सजदा करें, जैसे तूने हन्ना को औलाद से मीरास दी। खुदा इन बेटियों को भी उसी तरह बरकत दें, ताकि ये बेटियां तेरे हजूर झुकें। और बाप आसमानी, आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, जितने मेरे साथ मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं, उनको मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ। एक एक जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। यीशु, आज का तेरे हजूर झुकना बखुद की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। कलीसिया के साथ हो, कौम के साथ हो, जितने मेरे साथ उसी पेटलान पर एल्डर, डीकन, मुबशर, खुदा उनके साथ हो, उनको बरकत दे। बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। बेटियां, बेटे, खुदा उनके साथ हो, उनकी जिंदगियों को बहाल कर और बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की मानद ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। उसी यीशु के अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, बनी इसराइल के साथ, बनी इसराइल के 12 कबीलों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन।